Good morning, students. Now we will start our second class of Political Science, Chapter 2, Federalism. Earlier we studied about federalism in this chapter in our previous class, that we already studied about coming together federation and then holding together federation. Okay, and we studied about number of countries in the world that are having federal political system and all these. Okay, now we will start with our next topic, that is what makes India a federal country. कि इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाया गया है. Okay, so we have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? इंडिया का तो बहुत बड़ा कंट्री है, अलग अलग देयर आर 22 हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमने डिसाइड कर रखी है, फिर इतने सारे रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं. तो इंडिया को फेडरलिज्म बनाना किस तरह से बनाया गया, कितना एक बड़ा काम था, तो कैसे किया. What are the power sharing arrangements in our country? कैसे हमने power share किया है. Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. हमने partition का बहुत बड़ा दुख उठाया है, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का partition हुआ, बहुत ज़्यादा problems that time India faced. Soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitution declared India as a union of states. बहुत सारे states को मिलाकर हमने एक इंडिया को बनाया. So union of states. Although it didn't use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian constitutions. You all know, हमने in our earlier class we already studied all the 7 features of federalism. हमने सारे 7 features study किए थे. So इस तरह से सारे इन 7 features को mix करके ही हमने भी इंडिया को पूरा किस तरह से 7 फीचर्स का हमने यूज़ किया. वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. 2 tier का मतलब होता है जहाँ पर 2 होते हैं, दोनों में दो लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है. एक होता है यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. The union government, or what we call the central government, representing the Union of India, and the state government later. A third tier of federalism was added in the form of the panchayats and municipalities, जिसको हम बोलते हैं local government. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. तो इनका भी अलग से rules होते हैं, अलग से regulations होते हैं. The Constitution clearly provided the threefold distribution of legislative powers between the central government, the state government, और फिर थर्ड हो जाता है between the both. So there are 3 lists. First is union list. फर्स्ट जो यूनियन के डिवाइड होता है सारे पावर्स, दैट इज कौन कौन से पावर्स यूनियन के पास होते, दैट इज यूनियन लिस्ट. द सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, जिसमें सारे पावर्स स्टेट के पास होते हैं. एंड द थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पर दोनों का इंटरेस्ट काम करता है, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, so now we will study first union list. Union list includes subjects of, so you have to learn all the subjects of national importance such as defense, foreign affairs, banking, communication and currency, etc. They are included in this list because we need a uniform policy on these matters. कि हमें इसमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि स्टेट का डिफेंस की पॉलिसीज़ अलग हो, सेंट्रल की डिफेंस की पॉलिसीज़ अलग हो, बैंकिंग की पॉलिसीज़ अलग हो. ऐसा नहीं होता है. पूरा बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंडर कंट्रोल में आता है, पूरा डिफेंस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है. तो इस तरह उनके लिए हमें एक पॉलिसी चाहिए थी. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द अबव यूनियन लिस्ट. तो ये सारे इसके रिलेटेड इन सारे
जो डिपार्टमेंट्स है उनके रिलेटेड जो सारे लॉज बनाता है, दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन यूनियन गवर्नमेंट. ओके, नाउ द सेकंड इज स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट में क्या आता है? कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state governments alone can make laws relating to the above subjects. Now the third is concurrent list. Concurrent list includes subjects of common interest like education, forest, trade unions, marriage, adoption, succession, health, etc. ठीक है, both the union as well as the state government can make laws ऑन द सब्जेक्ट्स मैंशन. दोनों अपने अपने रूल्स अलग अलग बनाती हैं. यूनियन में एजुकेशन के रूल अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना एक पूरा एजुकेशन के रूल अलग चलते. तो इस तरह यहाँ पर दोनों को ही डिवाइड कर रखा है. इफ़ द लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, और अगर इन दोनों में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन कौन देता है? द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. तो मेनली किसको हम ज़्यादा एम्फेसाइज किसको देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाता है. What about subjects that do not fall in any of the three list? अब अगर कुछ बच गया हो तो वो कहाँ जाएगा? और subjects like computer software that came up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. तो ऐसा जो भी होता है ना, वहाँ पर डिसीजन कौन लेता है? यूनियन गवर्नमेंट लेती है. We noted above, the most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. सबके पावर डिफरेंट है. इसमें दे रखा है लाइक जम्मू एंड कश्मीर. सो नाउ अर्लियर इन जम्मू एंड कश्मीर वी आर हैविंग, जहाँ पर 370 चलता था, बट अब वो रूल जो है वो चेंज हो गया है. तो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्वियसली इन दिस बुक इट इज़ इंक्लूडेड कि जम्मू कश्मीर के लिए हमने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था. फिर उसके लिए सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सब अलग अलग होते थे. वहाँ पर जो इंडियंस हुआ नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स, वहाँ पर वो लैंड परचेज नहीं कर सकते थे, हाउस परचेज नहीं कर सकते थे. बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे. बट अभी जो 370 का प्रोविज़न, 370 का जो प्रोविज़न है वो ख़त्म कर लिया है. तो अब ये सारे रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं. ठीक है, तो इस तरह से कई ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जहाँ पर मतलब स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब जहाँ पर सबका आइडेंटिकल, सारे स्टेट्स का आइडेंटिकल पावर्स नहीं होते. तो वहाँ पर जनरली जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इट इज़ डिसाइडेड बाय जनरली द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. Then like there are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. Okay, जो मतलब बहुत छोटे होते हैं but still वो किसी के साथ merge नहीं होते हैं. Like the area like Chandigarh, Lakshadweep और the capital city of Delhi are called union territories. तो इनको union territories बोला जाता है. These territories do not have the powers of a state. इनको यूनियन जनरली यहाँ पर जितने भी पावर्स होते हैं वो किसके चलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं. ओके, This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. तो ये सब पार्लियामेंट के हाथ में नहीं होता है. Any change to it has to be first passed by both of the houses of the parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha with at least 2/3 majority. अगर कुछ चेंजेस करना है तो दोनों हाउसेस के लोग होंगे उसमें और 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर कोई नया प्रोविज़न, कुछ नया चेंज किया जा सकता है. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. Okay, तो सबका रोल होना कंपल्शन होता है. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. तो सबसे मेन जो फिर पावर किसको दिया है हमने? जुडिशरी को दिया है.
इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, वो पावर किसको दे रखा है, हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट्स को। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। तो इस तरह से टैक्सेस डिसाइड करना, ये सब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हाथ में, दोनों के पावर में दे रखा है। ओके, सो नाउ लिसन टू वन नेशनल एंड वन रीजनल न्यूज बुलेटिन। सो दिस इज वन टास्क फॉर यू कि आपको बताना है कि कितनी न्यूज आइटम्स रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, रिलेटेड विद द बोथ। तो ये सब देयर इज वन टास्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज के लाइक पोखरन किसका पार्ट है, राजस्थान का। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वॉज ओपोज्ड, तो पोखरन में क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो अगर राजस्थान गवर्नमेंट मना कर ले सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्या होगा, सिक्किम है, सिक्किम ने अगर ये प्लान कर ले कि वो अपनी टेक्स्ट बुक अलग चलाएगी तब क्या होगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैव डिफरेंट पॉलिसीज, अगर वो अपने अपने अलग अलग पॉलिसीज बना ले तो क्या होगा नक्सलाइट्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब लाइक दैट कि अगर स्टेट बोले कि हम सेंट्रल को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, सेंट्रल को अपोज करना स्टार्ट कर दे, देन व्हाट हैपन्स। तो ये सब देयर आर मैनी मेजर क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल हमने इंडिया को एक बांध कर रखा हुआ है अपने रिलीजन से, अपने कस्टम्स से, अपने लोगों के लाइक यूनियन हमने बना रखे हैं। यूनियन इन द सेंस कि मतलब हमने एक दूसरे को यूनाइट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स इतना फेस इंडिया को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो इस तरह से ये सारी जनरल इतनी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, नाउ इंडिया इन 1947, नाउ यू जस्ट सी द मैप ऑफ इंडिया की कैसी सिचुएशन थी, क्या क्या कंडीशन था। तो ये सब इस मैप में है, सो यू जस्ट चेक द map also. Okay, so now this is about up to that topic, then we will start how is federalism practiced, okay, in our next class. Okay, all of you have a nice day.